Hello friends, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we have covered the topic number 4.6, that is variable capacitors and inductors. Now in today's session, we will see the topic number 4.7, that is voltage and current sources, under the unit number 4, that is electronic components and signals. So the prerequisite of our today's topics are variable capacitors, classification of inductors, color coding of inductors, then independent voltage sources, then current sources and signal waveform, and finally integrated circuits. So these are the prerequisite of our today's topics. So before start our today's lecture, we will see what are the learning outcomes of our today's topics. So first is you will able to know about the independent voltage sources, then you will able to know about the current sources, then you will able to understand the signal waveform, and you will able to learn the integrated circuits. So these are the learning outcomes of our today's topic. So first we will see the voltage and current sources. So for the operation of all the electrical or electronic circuits, a source of power और एनर्जी इज इसेंशियल. अब क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके ऑपरेशन के लिए हमें सोर्स लगता है, दैट इज पावर सोर्स और एनर्जी. ये इसेंशियल होते हैं ऑपरेशन ऑफ सर्किट्स के लिए. Then these sources are classified into two categories as first is voltage sources, second is current sources. So the voltage and current sources can be further classified as dependent sources and independent sources. तो क्या होता है, ये जो सोर्सेस होते हैं ये क्लासीफाई, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तो वोल्टेज सोर्स होता है और दूसरा होता है करंट सोर्सेस. तो ये दो कैटेगरीज में सोर्सेस क्लासीफाई होते हैं. तो पहला है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स. सो the sources are classified as voltage sources and current sources. Then again, voltage sources are classified as independent voltage sources and dependent voltage sources. Like current sources are also classified as independent current sources and dependent current sources. So this is the classification of source. See the independent voltage sources. So in the independent voltage source, the terminal voltage of the source is not dependent on any other voltage source or current source. अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है सोर्स का वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है. किसी पे मतलब एनी अदर वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड नहीं होता है या करंट सोर्स पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है. द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज आइडियल वोल्टेज सोर्सेज एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज. सो फर्स्ट वी विल सी द आइडियल वोल्टेज सोर्स. तो इसमें देखो वोल्टेज दिया है, अब ये उसका सिंबल है और ये टर्मिनल वोल्टेज विदाउट लोड दैट इज आर इक्वल टू इन्फिनिटी है. तो सिंबल में देखो प्लस माइनस दैट इज बैटरी दैट इज वी वोल्टेज सोर्स, और इसमें देखो ये वोल्टेज सोर्स दिया है टर्मिनल वोल्टेज विदाउट आर एल. अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है प्लस माइनस बराबर है, यहाँ से करंट फ्लो होगा. तो ये जो आर एल है मतलब लोड यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये विदाउट लोड है तो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है जो डॉटेड डॉटेड लाइन से दिया है. सो लोड आर एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा ये आर एल के अक्रॉस वो कौन सा रहेगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी एल. टर्मिनल वोल्टेज रहेगा ये. देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज दिया है आइडियल सोर्स का, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये हो गया हमारा करंट फ्लो. देन ये टर्मिनल में क्या है, लोड कनेक्ट किया है हमने. अब ये लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वो रहेगा हमारा लोड वोल्टेज दैट इज वी एल इक्वल टू वी वोल्ट्स. ये लोड के अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज मिलेगा, लोड वोल्टेज इक्वल टू वी वोल्ट्स. सो द polarity of the voltage are indicated inside the circle and the terminal voltage is V volts. The source resistance of an ideal voltage source is 0. अब आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा. आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस ये हमेशा 0 रहेगा.
Therefore, the terminal voltage remains constant and equal to V volts without load, that is RL equal to infinity or with load. अब लोड कनेक्ट रहेगा या फिर विदाउट लोड रहेगा. Thus, for an ideal voltage source, the terminal voltage is independent of the load. So क्या हो जाएगा भी हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स जो टर्मिनल वोल्टेज रहे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड पे रहेगा. बराबर है. Now, without a load, the current is zero, but when the load is connected, the load current I will flow from the positive end of the source through load back to the negative end. अब विदाउट लोड में करंट हमेशा क्या रहेगा, अभी लोड ही नहीं रहेगा तो करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा. बट जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तब हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, लोड करंट जो फ्लो हो जाएगा. अब वो फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ सोर्स थ्रू द लोड बैक टू द नेगेटिव एंड. दिस इज द कन्वेंशनल करंट फ्लो. इस करंट फ्लो को बोलेंगे हम कन्वेंशनल करंट फ्लो. नो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. तो ये सिंबल दिया है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का और ये टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड दैट इज आई एल इक्वल टू इन्फिनिटी. तो देखो सिंबल में ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस है सर्कल के अंदर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एस. देन टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड पे देखो यहाँ पे प्लस माइनस दैट इज वोल्टेज सोर्स. करंट फ्लो होगा आई इक्वल टू जीरो. अभी लोड कनेक्टेड नहीं है तो करंट हमारा जीरो रहेगा. देन ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको आर एस बोलेंगे. और यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन से लोड कनेक्ट किया है तो एट नो लोड इसीलिए वो डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है. तो इसके अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो आर एस इक्वल टू इन्फिनिटी और ये जो वी एल है लोड वोल्टेज इज इक्वल टू वी वोल्ट. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. नाउ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. अब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है उसका टर्मिनल वोल्टेज का डायग्राम है. तो ये है वोल्टेज सोर्स, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई. देन दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस. देन दिस इज लोड रेजिस्टेंस आर एल. यहाँ पे लोड कनेक्टेड है तो लोड रेजिस्टेंस हो गया आर एल और इसके अक्रॉस हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वी एल जो हमेशा लेस रहेगा वोल्टेज से. जो वोल्टेज सोर्स है उससे ये हमेशा लेस रहेगा. तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. सो इन प्रैक्टिस द आइडियल वोल्टेज सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होता है. प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं. ऑल द सोर्सेज प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग आर प्रैक्टिकल सोर्सेज. द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज एन इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस आर एस. When there is no load connected that is RL equal to infinity, the current I equal to zero. अब यहाँ पे देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जो भी मतलब वोल्टेज सोर्स या जो सर्किट देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ लोड कनेक्टेड रहेगा. बराबर है. तो प्रैक्टिकल में हम क्या प्रैक्टिकली हम कुछ लोड कनेक्ट करके ही वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशन करते हैं या जो कोई परफॉर्मेंस होता है वो विथ कनेक्टिंग लोड से ही होता है. बराबर है. तो इसीलिए प्रैक्टिकल सोर्सेज आर यूज्ड इन एग्जिस्टिंग. Then therefore there is no voltage drop across RS and the terminal voltage VL equal to V volts.
सो व्हेन द लोड इज कनेक्टेड अ फाइनाइट लोड करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग। अब जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तब उसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट लोड करंट फ्लो होगा आई, बराबर है। हेंस सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस एंड द टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस देन वी। अब जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कहाँ पे, अक्रॉस आरएस में। वोल्टेज ड्रॉप अगर अक्रॉस आरएस होता है तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा लेस रहेगा देन अप्लाई, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उससे हमारा टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लेस रहेगा। इसीलिए द टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस देन वी। क्यों लेस मिलता है, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस आरएस में तो वो वोल्टेज कम हो गया तो आउटपुट में हमें वही कम वोल्टेज मिलेगा। अब वो कम वोल्टेज इस हमेशा कम रहेगा, दैट इज देन द अप्लाइंग वोल्टेज दैट इज वी। विथ इंक्रीज इन द लोड करंट द टर्मिनल वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तैसे तैसे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस वो इंक्रीज होते रहेगा। अब अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप ही अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, और कम मिलेगा, बराबर है। सो विथ इंक्रीज इन द लोड करंट आई द टर्मिनल वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज बिकॉज वी एल इक्वल टू वी इंटू आई आर एस। तो अभी देखो यहाँ पे दैट इज वी एल दैट इज लोड वोल्टेज, अभी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वी, बराबर है, जो सोर्स वोल्टेज है, माइनस करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस दिस एरिया, बराबर है। तो ये जितना हमारा करंट फ्लो होगा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो माइनस होगा हमारे वोल्टेज से, तो अल्टीमेटली हमें वी एल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नाउ द करंट सोर्सेज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर वोल्टेज सोर्सेज दिस रेट इज नॉट कांस्टेंट। In certain applications like instrumentation, it is necessary to have a constant current to the load. Therefore, a current source is used instead of a voltage source. The current sources are classified as independent and dependent current sources. Now program outcomes. तो हम अभी पीओज देखेंगे, उसकी पीओज मैपिंग देखेंगे। आज के सेशन में जो जो टॉपिक्स कवर किए उस टॉपिक्स को कौन से पीओज मैप होते हैं वो देखेंगे। हमारे टोटल पीओज है 10, दैट इज PO1 टू PO10। सो PO1, PO3, PO8 और PO10, ये चार पीओज आज के टॉपिक्स को मैप करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम आउटकम्स, दैट इज मैपिंग ऑफ पीओज विथ टुडेज टॉपिक्स। नाउ वी विल समराइज आवर टुडेज लेक्चर। तो क्या देखा हमने आज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज देखे, देन करंट सोर्सेज देखे, देन सिग्नल वेवफॉर्म और इंटीग्रेटेड सर्किट। So thank you, and in the next lecture we will going to start our unit number 5, that is the diodes and applications. Thank you.